Question number 331, Shriman Ashok Singh ji. Sir, we have to look into the question hour, na? After that you can raise. A letter to you, and not once, twice I have written a letter under Rule 176, short duration discussion about Yes, the that LPG, that is under the process, gas, and I will consult the concerned. No, sir, how many days it takes? You know, nearly 14 days before I have given notice. I will look into it and I will come back to you. Sir, Please, this please, is very I will come important. back to you. It is affecting the entire country. I am not coming back to you. Even I what understand. Trump said. I understand the Even importance Trump of said the issue. I will come that back to I you. am Please going take your to seat. stop Now, further war. 331, Because people Shriman are Ashok Singh ji. Yes. Honorable Minister, please take your seat. Please take your seat. I will look into it. I will look into it. Please take your seat. Ji, I will look into it. Please take your seat. First supplementary, Shriman Ashok Singh ji. Sir, let LOP speak, sir. I will look into it. I am not denying it. I am telling I am looking into it. Now, let the question run, please. Shriman Ashok Singh ji, your first supplementary, please. सर, आदरणीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी के आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, क्या छोटे उद्योग और नए युवा एंटरप्रेन्योर्स को BIS रेगुलेशन प्राप्त करने में कोई छूट दी जाती है या किसी प्रकार का सहयोग दिया जाता है ताकि उन्हें व्यापार करने में आसानी हो? मध्य प्रदेश के कितने नए उद्यमियों को BIS मानक पिछले 2-3 वर्षों में दिया गया है? Honorable Minister. सर, BIS जहां सब लोग इधर जो सीनियर हमारा मेंबर्स है वो जानते हैं, it was Indian Standard Institution established in 1947, sir. It became, ISI became BIS with the Act of 1986 with only one product-relate confirmatory assessment scheme was notified. But in 2015, considering the increased significance of the standards, because Prime Minister Shri Narendra Modi ji, he wants the quality products, he always keeps telling even manufacturers and all traders, business people, for the good quality, high standard quality, with and his famous slogan of Honorable Prime Minister, which has been made reality even in the India, that is zero effect and zero defect. This has been done. And now the BIS, we are converted into a national standard body of the India. It is looking after, and many QCOs have also been issued. And BIS now has 17 divisional council, about 400 technical committee with the pool of 15,000 technical experts. This is the vast expansion which has happened in the last 11 years under the Prime Minister Shri Modi. We have 10 confirmatory assessment schemes and 7 products, 1 for process and system and service. These are the important things which have been done in last few years. Now, as far as the MSME is concerned, 80% of the, besides handholding, concession in minimum marking fees payable have been reduced. 80% of micro scale and startup units, 50% fee exemption for the small scale industries, 20% for the medium scale units. Additional concession for the 10% is also provided to the women MSME and units of any scale located in the eastern states.
These concessions have been further extended up to 31 May 2029. Apart from that, many training camps, through online training, hand-holding, these are the programs which are being run. And what exactly numbers Madhya Pradesh we have issued the license, I will directly send it to the Honorable Minister. Right now, what exact number of the Madhya Pradesh I do not have, I will send it to him. Second supplementary, Shriman Ashok Singh ji. सभापति महोदय, आदरणीय, आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा ऐसे क्या कदम उठाए गए हैं जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि विदेशी और आयातित इलेक्ट्रॉनिक जैसे बैटरी, सीसीटीवी, कैमरा, मोबाइल, लैपटॉप आदि के रिपेयर का अधिकार और उनके डेटा की सेफ्टी उपभोक्ताओं के सुरक्षित रहे, ऐसी क्या व्यवस्था सरकार ने की है? धन्यवाद। Honorable Minister. Sir, as it is, जहाँ तक whether it is imported or manufactured in India, the system of issuing the license is same, sir. And for the electronic products certified by BSI, various measures have been undertaken for the ease of doing business and reduce the compliance burden. And online CRS portal completely digitized. Certification operation with the end-to-end solution has been made available. Manufacturers can log in with their credential, submit the documents and have their own dashboards for responding for BIS from their convenient location. And renewal certification process has been automated, doing away with the human intervention. Manufacturing just need to submit the details and pay the fee, and endorsement is generated by system only through automatic route. There is no human interference. So concession ke baare mein, as far as MSME, I have already told, I do not want to repeat it. For the electronic products which are it is notified by line ministry, sir. We are only create the standards as per the request of the concerned ministry. According to that, for the electronic products which are notified by MeitY under BIS Act, requirement to obtain certification license from BIS compulsory. Without this certification and presence of the standard mark, notified electronic goods cannot be sold in Indian market. So, and second important point is compulsory registration order be in place for electronic goods for the Indian markets. This order covers around 65 products which have been notified by the Ministry of Electronics and Information Technology. I would like to apprise the House, sir, through you, sir. Whatever the standards or the QCOs, they are decided by the concerned ministry. We will create the standard with the concerned ministry and experts. And now recently, even in some of the case, factory visits have also been avoided. I mean, it is up to only once in 5 years we will visit the factory, only to ascertain the quality. Market samples have been drawn, and if market sample fails, then only BIS will give the notice. And in this particular case, we will inform it to the Ministry of MeitY, that is Ministry of Information and Technology. They will take care of it. And our role in this matter, when the product is, if it is passed, there is nothing like that in the test. If it fails, we will inform it to the Ministry of the concerned ministry, particularly in this Ministry of Information and Technology. Now, third supplementary, Sakat Kogle ji. Thank you very much, Honorable Chairman, sir. Sir, BIS certification under the CRS scheme, it requires only lab testing with no mandatory factory audits for electronics. So basically, sir, certification is granted per factory and per product model, meaning a manufacturer can certify one unit, obtain registration, and then non-conforming products can be shipped in bulk with no ongoing physical verification, sir. So also penalties under the BIS Act are capped at about 5 lakh rupees, which is a negligible cost for large companies. So my question through you to the Honourable Minister is, will he inform this House about how many consignments of BIS certified electronics
were actually tested at the port of entry in the last 3 years, and how many of these were found to be non-compliant despite holding a valid BIS certification, sir? Thank you. Honorable Minister. Sir, this total 25,300 license and registrations are in operation for the electronic products. Under the provisions of the 16 of the BIS Act, authority for notifying any products as per the relevant Indian standards and the scheme certification rests with the relevant central government ministry and regulation. That is what I have already informed, sir. But the question is, the search and operations of BIS, there are 21 cases, and legal cases filed in the court are 17 cases. 8 cases out of these pertain to the e-commerce platform. So continuously we are monitoring, because whatever the electronic goods we import, we are using it for some of our products which are further exported. So we are very, very quality conscious. And at the initial stage itself, I said, the Honorable Prime Minister's direction to the all ministers, हम सबको एक डायरेक्शन है, एक तो जीरो डिफेक्ट तो नहीं रहना चाहिए, so that India should become a manufacturing hub. To become the manufacturing hub, we should have a good export market. For the good export market, sir, we should have a good quality. And nowadays, recent times, we have also seen, sir, zero effect. Zero effect is regarding the environment. So with these two slogans, every ministry, every department is trying to very, very particular about the maintenance of the quality. And also, first of all, we would like to promote our industry to produce. It is not just a regulatory body, sir. Now, BIS has also become, along with the concerned ministry, line ministry, it is a facilitating also. Why you are facilitating? We just, if you curb them, if you just say your quality is not up to mark, we are closing it. So we are trying to train them. We are trying to facilitate them so that they should manufacture and they should also export. This is the intention of the BIS. That's why number of labs, it was just 10, sir. Under the Modi government, it has increased to 750 labs, either empaneled or recognized lab by the with the accreditation lab. So the verification, market testing, this is a continuous process, and whenever product fails, we will try to, first of all, if it is continuously done, as I said, whatever are imported, whether it is raw material or finished product, the custom will also check as per the BIS notification, and many cases have been filed, which I have already informed the House through you, sir. Fourth supplementary, Dr. Sangeeta Balwant जी. सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण में सराहनीय कार्य के लिए बधाई देती हूं। महोदय, सरकार ने हाल ही में ट्रेड ऑपरेशंस को सुगम बनाने और कस्टम्स को अथॉरिटीज के साथ बेहतर समन्वय की बात कही है। माननीय मंत्री जी, कृपया यह बताने की कृपा करें कि BIS, कस्टम्स अथॉरिटीज और इंडस्ट्रीज के हितधारक बीच सुचारू समन्वय सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं ताकि सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स की क्लियरेंस बिना देरी के हो सके और इंपोर्ट्स में रुकावट न आए। धन्यवाद। Honorable Minister. Sir, as it is, customs, they do their job as per the notification of the concerned ministry and the BIS notification, sir. But in many of the cases, whatever now we are trying to, as far as the custom notification and the custom testing she has asked, there as per the BIS norms and BIS notification, the proper checking is done, and for that we have issued many guidelines even at the at that level, and BIS has constant engagement with the custom through ICGAT portal. एक portal है sir, एक portal के द्वारा whatever information comes to us. For example, when market में जब हम इसको check करते हैं, test करने के बाद अगर उसमें fail होता है तो इसका पूरा details हम इसके द्वारा भी customs को भेजते हैं, and custom nowadays
Normally, through technology driven checking bhi hota hai, और as far as possible, all put together, all department together, human interference कम करके इसको ठीक तरह से हमारा प्रोडक्ट अच्छे क्वालिटी भी आ जाए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हो जाए, ऐसे हम कोशिश लगातार कर रहे हैं सर। फिफ्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान राघव जड्डा जी। थैंक यू सर, आपने सवाल पूछने का मौका दिया। सर, भारत का कंज्यूमर बाजार एक बड़ी बीमारी का शिकार है जिसे मिसलीडिंग ब्रांडिंग और फॉल्स एडवर्टाइजमेंट के नाम से जाना जाता है। जब हम एक फ्रूट जूस की बोतल खरीदते हैं तो उसके फ्रंट पे फ्रेश फ्रूट जूसेस की बड़ी जूसी फ्रूट्स की पिक्चर होती है, लेकिन पीछे स्मॉल टेक्स्ट में बैक ऑफ द पैकेजिंग उस फ्रूट जूस के लिखा होता है दैट पिक्चर इज ओनली फॉर मार्केटिंग पर्पज ओनली। एंड हमारे देश का कंज्यूमर, खास तौर पे देश का युवा, इन ड्रिंक्स को ये सोच के कंज्यूम करता है कि ये हेल्दी है और न्यूट्रिशियस है, लेकिन उसे पता नहीं कि वो चीनी का घोल पी रहा है जिसके चलते डायबिटीज, ओबेसिटी और लाइफस्टाइल डिजीजेज होती हैं। माय क्वेश्चन टू द ऑनरेबल मिनिस्टर थ्रू यू सर इज दैट व्हाट स्टेप्स इज द गवर्नमेंट टेकिंग टू एंश्योर दैट वी पुट अ बैन ऑन मिसलीडिंग इमेजरी, ताकि ऐसा ना हो कि मिसलीड करें विजुअली और कंप्लाई करें टेक्निकली। How are we ensuring that high in sugar disclosures are put at the front of the packet? And lastly, how are we going to ensure that there is category clarity that whether this product is a fruit juice or a sugar plus concentrate preservative drink? Thank you. Honorable Minister. Sir, I appreciate the concern of the entire House as far as this quality issue is concerned. But as far as misleading advertisement guideline is issued by CCPA, the Central Consumer Authority, and under the LM Act, Legal Metrology Act, we have 6 compulsory declaration on every packing. So on that, apart from that, if whatever the requirement, required sugar or any other content in that, what has to be displayed and what is the norm, that is normally decided by the FSSAI, and it is under Health Ministry. We are regularly, our organization and their FSSAI are interacting, and any such misleading advertisement, not only on such a type of packages, any other such issues when it come across us, we are taking action. And as far as misleading is concerned, many of them have been fined as far as advertisement is concerned. As far as package is concerned, we are continuously interacting and with the FSSAI. And as far as legal metrology is concerned, whatever has to be displayed, that has to be displayed. If that is displayed, proper action is always taken, and even in due course also, that process will continue. Now question number 332, Shriman Brendra Prasad Baisia ji. Honorable Minister. पटल पर रख दिया। Third supplementary, Shriman Maharaja Sanjoba Lezamba. Thank you, sir. Sir, cancer and other rare diseases are very rampant in northeast state, especially in rural areas, whereas the healthcare facilities there are very limited. So the poor patients have to move to other cities like Guwahati, Delhi, Mumbai, etc. Therefore, there is urgent need for establishing of AIIMS or similar institute in each state of Northeast except Assam. My question to the Honorable Minister through you, sir, is whether the government has any plan for the establishment of AIIMS or similar institute in the region to improve the healthcare facilities of Northeast people. Honorable Minister. Sir, as far as the facilities in the northeastern states are concerned, under the National Health Mission, we give the technical and the financial support to the institutions. And if I talk about the northeastern region, I would like to elaborate that first of all, that there are 12 medical colleges in the past 10 years which have been given to the northeast region, and total of 2,737 crores
have been spent for these medical colleges. These medical colleges are Nahar Lagoon, Arunachal Pradesh, 189 crores, Dhubri in Assam, Nagaon in Assam, 189 crores, North Lakhimpur, 189 crores, Difu, 189 crores, Kokrajhar, 325 crores, Chura Chandpur, that is in Manipur, 325 crores, West Garo Hills, Meghalaya, 189 crores, Falkwan, Mizoram, 189 crores, and Naga Hospital, Nagaland, 189 crores, Mon, Nagaland, 325 crores, and Gangtok, Sikkim, 250 crores. So the total of 2,737 crores have been given to the Northeast region in the past 10 years as far as the establishment of medical college is concerned. Another thing I would like to say that we have gone for upgradation also. And for upgradation, the Guwahati Medical College has been given 154 crores for a super specialty block. The same way, the Assam Medical College, Dibrugarh, has been given 150 crores. And Agartala Government Medical College, Agartala, has been also given 150 crores, which I would like to share with the House. The another thing which I would like to say that the NIGRIMS, that is the Northeastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, NIGRIMS, has been given 1,471 crores to Shillong, Meghalaya. And the Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences, that is in Aizawl, 730 crores have been given. And for Manipur, for the Honourable Member, I would like to share that the Regional Institute of Medical Sciences has been given 4,723 crores. So all this, and this has been done for the strengthening of the infrastructure as well as training of the manpower. And you can, we can understand that if we are giving 4,723 to Manipur for the regional institute, that is RIMS, Imphal. So we can understand that it includes the treatment of cancer also. And as he's talking about cancer, I would like to share with you that the Lancet report now recently has said that now in India, the treatment of cancer starts within a month from the day of detection. That is 90% care has been taken care and the treatment starts. That is what I'd like to share. Fourth supplementary, Srimati S. Pangyan Koniakji. Chairman, sir. As per the answer of the Honourable Minister, the Ministry of Health and Family Welfare has CSS for establishment of new medical colleges attached with existing district and referral hospitals, with preference to underserved areas and aspirational districts where there is no existing government or private medical college. Are there plans to take up the proposed Mon Medical College in Nagaland, currently under construction under this scheme? Thank you, sir. Honourable Minister. And as we say that it is a continuous process. The medical college has been established, the building is being constructed, and we will go forward in that direction. And the development part is also, as I said, it is a continuous process. We'll do that. Fifth supplementary, Dr. Sarfaz Ahmed ji. सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि झारखंड में एकमात्र एम्स देवघर, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, आज वहां पे केवल और केवल ओपीडी है, न दवा की व्यवस्था है, न डॉक्टर की व्यवस्था है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या देश के अन्य एम्स के तरह झारखंड में जो एकमात्र एम्स खोला गया है भारत सरकार द्वारा, उसको अपग्रेड करेंगे, अपडेट करेंगे? अगर करेंगे तो कब तक कर पाएंगे? धन्यवाद। सर, ये प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सभी 23 के 23 उनके स्टैंडर्ड्स में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं और उसके डेवलपमेंट में हम कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं एज फार एज फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट्स। एक बात मैं हाउस को पहले भी बता चुका हूं और इस बार आपके माध्यम से फिर से बताना चाहता हूं कि आप एक बात से समझिए कि
60 के दशक में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनना शुरू हुआ था, लेकिन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की ख्याति और उसका स्थान 80 के दशक में बना। किसी भी इंस्टीट्यूट को बनने में 10 से 20 साल लगते हैं और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की फैकल्टी को ग्रो करने में और उसकी स्टैब्लिश होने में कम से कम 10 साल लगते हैं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। अगर हमने एक एम्स से लेकर के देश में 23 एम्स खोले हैं तो हमने रीजनल इम्बैलेंस को समाप्त किया है। और आसाम को देखिए, बिहार को देखिए, झारखंड को देखिए, आप रिमोट एरियाज में देखिए, कलकत्ता को देखिए। अब हर एक जगह हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोले, लेकिन और अभी जैसे हमारी सदस्य रायपुर से बोल रही थी कि वहां भर्ती नहीं हो पा रही है। कारण क्या है कि लोगों का एम्स के प्रति विश्वास इतना है कि लोग एडमिट ही वहीं होना चाह रहे हैं। कोई भी अब वेस्टर्न इंडिया से कोई भी बीच में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रुकता ही नहीं है, सीधे दिल्ली और एम्स पर आता है। तो इसका मतलब एम्स के स्टैंडर्ड के बारे में तो कोई प्रश्न नहीं है। तो हम झारखंड के भी देवघर को, आफ्टरऑल उसको भी 5-7 साल हुआ है, हम पूरी तीव्र गति से लगे हैं और हम इसको बिल्कुल अच्छा बनाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 333 श्रीमान शंभुचरण पटेल जी। 333। ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, उत्तर सभा पटल पर रख दिया है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमान शंभुचरण पटेल जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अवसर दिया। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड पहल ने देश में कितने प्रवासी श्रमिकों की खाद्य सुरक्षा में किस प्रकार सुधार किया है? क्या सरकार ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड को राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू कर दिया है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। सदन को भी बताना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में 50% और ग्रामीण क्षेत्र में 75% जनसंख्या को कवर करते हैं। वर्तमान में 81.35 करोड़ इच्छित कवरेज के मुकाबले 79.40 करोड़ लाभार्थी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार के द्वारा पहचान किया गया है। देश के करोड़ों श्रमिकों और प्रवासी परिवारों के हित में चल रही वन नेशन वन रेशन कार्ड पहल ए वरदान रूप साबित हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ए वन नेशन वन रेशन कार्ड एक क्रांतिकारी निर्णय है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में ये पहल केवल एक योजना नहीं है, बल्कि गरीब और मेहनतकश नागरिकों के सम्मान और अधिकार की रक्षा का संकल्प है। आज देश का कोई भी प्रवासी श्रमिक, चाहे वह किसी भी राज्य, चाहे बिहार हो, चाहे आंध्र प्रदेश, चाहे गुजरात, किसी भी राज्य में काम कर रहा हो, अपने हिस्से का राशन वे कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि हमारे देश में 140 करोड़ लोगों में से कोई गरीब भूखा न सोए। ये हमारा सरकार का लक्ष्य है। हम सबके लिए गर्व की बात है कि आज विश्व का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम हिंदुस्तान में चल रहा है। हमारी सरकार देश के कोने कोने में राशन पहुंचा रही है। कोरोना महामारी के कठिन समय में भी जब लाखों श्रमिक अपने घरों से दूर थे, तब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ वन नेशन वन रेशन कार्ड उन्हें सुरक्षा और संबल प्रदान किया है। हमारे देश में आज वर्तमान में 207 पोर्टेबिलिटी लेन देन हुई है। वर्तमान में वन नेशन वन रेशन कार्ड सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में लागू है, जो पूरी एनएफएसए आबादी को कवर करता है। अब तक 207 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेन देन हुई है। माइग्रेट परिवार को 509
लाख मैट्रिक टन अनाज डिलीवर किया गया है। हर महीने 3.25 करोड़ लोग इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। हमारा देश में कोई भी गरीब भूखा न सोए, ये हमारी प्रतिबद्धता है। सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान शंभू शरण पटेल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड हमारे केंद्र सरकार की बहुत ही उपयोगी और लाभकारी योजना है महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड को और मजबूत बनाने और इसकी प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए भविष्य में कौन सी पहल की जा रही है। ऑनरेबल मिनिस्टर। वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम से सरकार ने स्मार्ट पीडीएस के प्लेटफॉर्म के जरिए वन नेशन वन राशन कार्ड को और मजबूत बना रही है, जिससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के बीच डेटा का रियल टाइम जुड़ाव संभव हो रहा है। इसके अलावा सार्थक पीडीएस के तहत एआई आधारित विश्लेषण और बेहतर शिकायत निवारण व्यवस्था जैसी सुविधा जुड़ी है। वन नेशन वन राशन कार्ड का देश के इस योजना के तहत 81 करोड़ नागरिक अब किसी भी राज्य से किसी भी दुकान से अपना राशन ले सकते हैं। समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को अनाज मिले, यही मोदी सरकार की प्राथमिकता भी है और प्रतिबद्धता भी है। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमती रजनी अशोक राव पटेल जी। I would like to ask the Honourable Minister through you that reports from several states have highlighted frequent failures of biometric authentication at fair price shops under the public distribution system due to issues such as poor internet connectivity, faulty devices and mismatched fingerprints, particularly affecting elderly and manual labourers, which leads to denial or delay in access to essential food grains. In this context, may the Minister clarify whether the government has assessed the extent of such authentication, assessed the extent of such are being implemented, including provision of alternative authentication method, offline verification system, and strengthening of infrastructure to ensure that no eligible beneficiary is deprived of this entitlement. Honourable Minister. माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में बताना चाहती हूं कि टीपीडीएस केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी से चलता है। केंद्र सरकार खरीद आवंटन और एफसीआई डिपो तक अनाज पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। राज्य सरकार एफसीआई डिपो से फेयर प्राइस शॉप तक अनाज पहुंचाना, लाभार्थी का सही चयन करना और राशन कार्ड को जारी करना, फेयर प्राइस शॉप को लाइसेंस देना एवं उसका सही संचालन करना और राशन का वितरण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को यह निर्देश दिया गया है कि किसी भी योग्य लाभार्थी को नेटवर्क न होने, सर्वर डाउन होने तथा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फेलियर की वजह से अनाज मना ना किया जाए। उसके साथ ही ईपोस मशीन ऑफलाइन मोड में भी काम करती है। उन्हें बीच बीच में नेटवर्क में लाना होता है ताकि ऑफलाइन डेटा पीडीएस डेटा से जुड़ सके। इसके साथ ही दूरसंचार, इसके साथ भी बहुत सारे अतिरिक्त 8 अन्य डॉक्यूमेंट भी ऑथेंटिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 8 अन्य दस्तावेज भी ऑथेंटिकेशन के लिए उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान भागेंद्र पट जी। माननीय महोदय, मैं माननीय मंत्री जानना चाहूँगा कि इस योजना के अंतर्गत सभी राशन कार्डों को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य किया गया है। जिन क्षेत्रों में इंटरनेट या बायोमेट्रिक मशीनों की समस्या है, वहाँ सरकार ने क्या वैकल्पिक व्यवस्था की है? क्या बायोमेट्रिक फेल होने की स्थिति में लाभार्थियों को राशन से वंचित होने की शिकायतें आ रही हैं? उनके समाधान के लिए क्या नीति अपनाई गई है? ऑनरेबल मिनिस्टर जी। लाइक टू क्लैरिफाई थ्रू यू, पूरा सदन के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक व्यक्ति को भी बिना अनाज वो ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ, इस कारण से राशन शॉप से वापस हम नहीं भेजते हैं सर। दैट हैज बीन इंस्ट्रक्टेड टू द एवरी स्टेट गवर्नमेंट। एंड ये जैसे ऑलरेडी माननीय मंत्री जी ने बताया है, ऑफलाइन पे भी चलता है। इसके अलावा अभी हम नया पहल शुरू किया है मोदी जी के मार्गदर्शन में, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी हमने पायलट मोड पर शुरू किया है। जो भी डिजिटाइजेशन हुआ है सर, ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा एक डिजिटाइजेशन इस विभाग में हुआ है। इसलिए बहुत बड़े मात्रा में जो हमारा रूट ऑप्टिमाइजेशन अन्न चक्र, मैं एक एग्जांपल बताता हूं, जहां से जहां वो ट्रक चलते हैं पता भी नहीं चलता था, हमने ज्यादा रूट इधर उधर से लेके ज्यादा देना पड़ता था। हम अन्न चक्र एक एआई ड्रिवन एक हमने शुरू किया, उसके कारण 250 करोड़ हमने सिर्फ इसमें सेविंग कर रहे हैं। डिपो दर्पण में हमने डिपो दर्पण में क्या क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये सब पता चलता है। इसलिए बहुत बड़ी मात्रा में मैं ये भी कह सकता हूं न के बराबर हम ट्रांजिट और जो हम लॉस है 0.18% और 0.7% ऐसे 0.18% और 0.7% ऐसे कुछ है, एग्जैक्ट फिगर मैं संबंधित सदस्य को भेजता हूं। सो ओवरऑल टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा बदलाव इस 10 वर्ष में बिकॉज ऑफ द डिजिटाइजेशन सर। इट इज बिकॉज ऑफ द डिजिटाइजेशन, हमें टेक्नोलॉजी ड्रिवन बहुत बड़ी मात्रा में हुआ है। मैं सीबीडीसी के बारे में ये बताना चाहता हूं, रिजर्व बैंक के द्वारा एक डिजिटल करेंसी हमने शुरू किया है। वो डिजिटल करेंसी अभी जो शुरू हुआ है गुजरात में, हमने पायलट मोड में शुरू किया है, पायलट प्रोजेक्ट के नाते, और पुदुचेरी में किया है। ये दोनों डायरेक्टली मोबाइल पे एक इनका वैलेट खोलते हैं, वो वैलेट में थ्रू बैंक ये आरबीआई के द्वारा जो ओपन किया है, वो डायरेक्टली करेंसी डिजिटल करेंसी उनके अकाउंट में जाता है। जब वो जाके स्कैन करता है रेशन शॉप में, तब उनको रेशन मिलता है। ये तो अभी पायलट मोड में है, लेकिन मैं इसीलिए इन्फॉर्म कर रहा हूं कि ओवरऑल फॉर ऑल दीज इनिशिएटिव्स ऑफ द डिजिटल, मैंने बहुत डिजिटल मोदी जी के मार्गदर्शन में बहुत डिजिटाइजेशन इसमें हुआ है। मैं डिटेल में नहीं बताता हूं कि 1 घंटे के होगा, इतना बड़ा हमने रिफॉर्म इसमें लाया है। इसके कारण मैं बताना चाहता हूं, कोई भी फॉर नॉन ऑथेंटिकेशन नोबडी इज सेंट बैक, किसी को भी बिना राशन वापस नहीं जाएंगे। मोदी जी का एक ही निर्देश है, कोई भी भूखे नहीं सोना चाहिए, ये हमारा फर्म कमिटमेंट है सर। 5th supplementary, Dr. M. Tambiduri ji. Thank you, Chairman sir. I appreciate the innovative program of Modi ji government, the One Nation, One Card, that is the system, sir. Sir, you have mentioned in your reply the ONGC facility has been implemented in all 36 states, union territories covering more than 80 crores beneficiaries. But if you see the figure, your Karnataka state, your figure, if you see that 2024-0, you have mentioned your reply, there is nothing beneficiaries benefited. In the Andhra also, if you say 159 only. But if you take Tamil Nadu also, it is less going down. Last time, previously 4,600, now 1,290. Kerala is more. Sir, in southern, in Telangana also more. Especially the migration of labor is, especially from Bihar, Jharkhand, Orissa, like that many people are coming working throughout India. Without that labor, India cannot develop because they are hard-working people, all the places. But why these kind of states, when we are having the most of the laborers coming from Bihar, Jharkhand and every place, that is a place. But the figure shows why in Karnataka is also, I have seen because I know Karnataka, Bangalore also, lot of people working. But your state is, no, in this 20, despite nobody has taken that facilities. In Tamil Nadu also going down. Whether state government, Tamil Nadu is not serious about these things. The DMA government is going on. They are telling everything, but everything benefiting poor people. But here is going down. Is it the fact that the state government like Tamil Nadu is not serious about implementing this program, not in program? I want to know that. Honorable Minister.
माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों को बताना चाहती हूँ कि वन नेशन वन रेशन कार्ड की सफलता ने भौगोलिक सीमा को समाप्त कर दिया है। अब प्रवासी मजदूरों के लिए राशन कार्ड देश के हर कोनों में पोर्टेबल है। कर्नाटक में वन नेशन वन रेशन कार्ड के तहत 2024 में 1,24,65,740 लेन देन हुई है और 2025 के दौरान 1,17,69,523 इंस्टा लेन देन हुई है। हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आज देश के 81 करोड़ नागरिकों के लिए पोषण की पक्की गारंटी बन चुका है। Now question number 334, Dr. Bhim Singh जी। 334। Honorable Minister. So first supplementary, Dr. Bhim Singh जी। महोदय, मैं जब प्रश्न करने खड़ा हूं तो दो भावनाओं के उद्रेक में हूं। एक तो मुझे प्रसन्नता है कि मेरी लॉटरी लग गई पूछने का, और दूसरा संकोच हो रहा है कि माननीय मंत्री जी हमारे नेता हैं तो उनसे मैं पूछूं कि नहीं। लेकिन ये छात्र अगर शिक्षक से पूछेगा नहीं तो सीखेगा कैसे, अगर जूनियर सीनियर से पूछेगा नहीं तो सीखेगा कैसे। तो सीखने के नियत से हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि जब देश में ये जो ARV और RIG वैक्सीन्स की कमी है तो ऐसी परिस्थिति में ये निर्यात क्यों किया जा रहा है। और जो सरकार ने मंत्री जी ने जो डेटा दिया है, इन्होंने खुद बताया है कि वर्ष 2022-23 में 2,09,275 किलोग्राम, 23-24 में 2,61,261 किलोग्राम, 24-25 में 3,45,270 किलोग्राम निर्यात किए गए। अभी हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, अभी हाल फरवरी महीने की ही घटना है। 17 फरवरी को सोनीपत में एक कुत्ते ने काटा किसी व्यक्ति को और एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाता रहा और कमी के कारण उसकी मौत हो गई। सरकार के पास मौत का भी डाटा है, ये संख्या ये खुद संधारण करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ महोदय कि जब कुत्ते की काटने से या बंदरों के काटने से मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है और यहाँ आवश्यकता अधिक है, तो निर्यात का क्या उचित है? क्या ये निर्यात को कम करके देश में ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराना चाहेंगे? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसके माध्यम से कोई देश में गलत संदेश न जाए, इसलिए मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं कि सबसे पहली बात तो यह है कि देश में कोई भी ARV की और RIG की भी कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो वायरल है ये बड़ा फेटल है और इसका ये कुत्ते के काटने से भी होता है, अगर वुंड को लिक कर दे तो उससे भी हो जाता है, और अगर बाइट्स हो या स्क्रैचेस पर अगर लिक कर दे तो उससे भी होता है, और ये जब हो जाता है, इससे सिम्टम्स आ जाए तो ये बहुत फेटल होता है। अब जहाँ तक सवाल है रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन जो है RIG और उसी तरीके से जो ARV है, वह देश में साल भर में RIG 1,77,00,000 प्रोड्यूस होता है। उसी तरीके से ARV जो है वो 8,17,00,000 होता है। और हमारे यहाँ जो जो केसेस हैं बाइट्स के वो 58 लाख कुल एलिमेंट बाइट्स हैं और उसमें से 47 लाख डॉग बाइट्स होते हैं। तो देश में उसको पूरा करने के लिए हमारे पास पूरी व्यवस्था है, इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। दूसरा, अवेलेबिलिटी के लिए हमारे यहाँ DVDMS है
जो डैशबोर्ड है ड्रग एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजिंग सिस्टम, ये रियल टाइम ट्रैकिंग करता है और जब किसी स्टेट में या किसी डिस्ट्रिक्ट में 15 दिन से कम का स्टॉक रह जाता है तो उसको अलर्ट तुरंत जाता है और उसको वहां पर दवाई पहुंचाई जाती है। इसलिए माननीय सदस्य जी और उनके माध्यम से सारे देश को मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पास माकूल व्यवस्था है। मैंने आपको बता दिया 1,77,00,000 हम मिलियंस ऑफ वायल्स हम RIG के रखते हैं और ARV के हम 8 करोड़ रखते हैं। आवश्यकता 48 लाख डॉग बाइट्स के लिए जरूरत होती है। बाकी एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन हम कभी भी इसलिए एक्सपोर्ट नहीं करते हैं कि देश में कमी रहे और एक्सपोर्ट करें, ऐसी स्थिति कभी नहीं आती। सेकंड सप्लीमेंट्री भीम सिंह जी, महोदय 4 पूछने प्लीज। जी, माननीय मंत्री जी के जवाब से हम संतुष्ट ही नहीं परम संतुष्ट हैं, लेकिन प्रश्न के माध्यम से उनके संज्ञान में हम लाना चाहते हैं, क्या उनके संज्ञान में है कि विश्व विख्यात साइंस की पत्रिका लैंसेट में जुलाई 2025 में ये रिपोर्ट छपी। उसने 15 राज्यों के 60 जिलों और 534 स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। बताया हो सकता है कि इनका जो सूचना है षड्यंत्र के तहत देश को बदनाम करने के लिए हो, लेकिन मैं संज्ञान में लाना चाहता हूं, क्या इनके संज्ञान में है कि लगभग 80% अस्पतालों में ही एंटी रेबीज थे, केवल 20% केंद्रों में ही RIG उपलब्ध था और भारत में दक्षिण के राज्यों में कुछ ज्यादा था लेकिन नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में कम था। तो ये जो क्षेत्रीय संतुलन की बात प्रचारित की जा रही है, जिसके प्रभाव में मैंने यह प्रश्न किया, तो क्या सरकार इस तरह के जो गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं इनके पत्रिका के विरुद्ध कोई कार्रवाई करना चाहेगी या इसके खिलाफ व्यापक जनता में प्रभाव डालने के लिए कोई अभियान चलाना चाहेगी? ऑनरेबल मिनिस्टर, मुझे पर्टिकुलरली इस संबंध में कोई रिपोर्ट लैंसेट में छपी ऐसा अब मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि कई पत्रिकाओं में कई चीजें भ्रामक आती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय तुरंत उनका कॉन्ट्रडिक्शन करता है और फैक्चुअल चीजें भारत को और सारे देश को और सारी दुनिया को बताता है। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान शक्ति सिंह गोहिल जी। सर, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि रेबीज इम्यूनोग्लोबिन और एंटी रेबीज वैक्सीन देश में पूरी तरह से उपलब्ध है। मैं आपके जरिए चेयरमैन सर ये पूछना चाहता हूं मंत्री जी को कि जब ये पूरी तरह से उपलब्ध है देश में, तो कहां सिस्टम में प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट अस्पताल में गरीब आदमी जाता है, गवर्नमेंट अस्पताल में हर दिन गुजरात से कोई ना कोई, बोटाद हो, भावनगर हो, अमरेली हो, फोन आते हैं। हमारे वहां गुजरात में उसे हड़कायु कुतरू कहते हैं, माने जिस वायरस से, जिस डॉग के बाइट करने से गुजराती में हड़कवा कहते हैं, जिसे हम रेबीज कहते हैं, वो शुरू होता है। सर, इंसान की जिंदगी से महंगा और कुछ भी नहीं है। मैं आपके जरिए मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि सिस्टम में कोई तो प्रॉब्लम होगा, ताकि आप कह रहे हो कि पूरी वैक्सीन उपलब्ध है और हम हर दिन फोन पाते हैं कि गवर्नमेंट अस्पताल में नहीं है। तो क्या भारत सरकार गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो भी स्टेट में है वहां पे एंटी रेबीज वैक्सीन और रेबीज इम्यूनोग्लोबिन पूरी तरह से गवर्नमेंट अस्पताल में डायरेक्ट भारत सरकार वहां पहुंचाए, ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं या नहीं? थैंक यू सर। ऑनरेबल मिनिस्टर, देखिए, जहां तक हेल्थ का सवाल है, हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट। हम उनको टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, इसलिए प्रदेश को पहुंचाना ये हमारी जिम्मेवारी है, टाइम का पहुंचाना ये हमारी जिम्मेवारी है, उनको अलर्ट करना ये भी हमारी जिम्मेवारी है, जो हम रियल टाइम डैशबोर्ड से करते हैं। लेकिन आगे का डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट्स को देखना पड़ता है और स्टेट्स ही इसको करने के लिए सक्षम है। उनकी ट्रेनिंग भी हम कराते हैं। जी। फोर्थ सप्लीमेंट्री रविचंद्र वाडी राजू जी। Sir, whether the government will impose export and restrictions until domestic demand for RIG and ARV is fully met, and whether steps are being taken to increase domestic production capacity through public and private partnerships, sir. Thank you, sir. Honorable Minister. Sir, again I would like to say that there is no shortage of RIG and
and ARV. So we should shed this thought that there is some shortage. There is no shortage. और इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है कि हम एक्सपोर्ट को रोके. और अगर ऐसी कोई स्थिति आएगी, if the situation like that comes, certainly we are not going to export. We are going to first use this for the domestic purpose. इस बात को हमको समझना चाहिए. As far as private-public partnership is there, this is a continuous process. If proposals are there, we are open to it. Fifth supplementary, Subhasis Kundia ji. थैंक यू चेयरमैन सर. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, उड़ीसा में प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में एंटी रेबीज वैक्सीन और आरआईजी की निरंतर उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं? और आपने तो बोल दिए हैं कि हर ये स्टेट का है. अगर कोई स्टेट पीएससी और सीएससी में ये अवेलेबल नहीं करता है तो उसके ऊपर आप क्या कार्रवाई करते हैं? ऑनरेबल मिनिस्टर, ये मैं बताना चाहता हूं कि स्टेट हर एक जगह पर अपनी ट्रेनिंग करती है. ट्रेनिंग करने के साथ साथ वो पीएचसी चाहे सीएचसी लेवल पर हो, अगर उनके पास उस तरीके की कैपेसिटी है तो वो वहां करते हैं, नहीं तो सब डिविजनल हॉस्पिटल में करते हैं. लेकिन ये व्यवस्थाएं पूरी की पूरी माकूल की जाती हैं. स्टेट को देखना पड़ता है कि वो पीएचसी में इसका व्यवस्था कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. अगर कर सकते हैं तो करते हैं, और जहां डॉक्टर्स होते हैं वहां वो किया ही जाता है. ये कोई पैरामेडिक्स पर छोड़ा जाए ऐसा नहीं है. इसमें डॉक्टर्स की और बाकी लोगों की भी आवश्यकता होती है. तो जो फैसिलिटी में सारी चीजें होती हैं वहां ये दिया जाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 335, श्रीमान ब्रिजलाल जी. ऑनरेबल मिनिस्टर. आंसर इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस. द फर्स्ट सप्लीमेंट्री, श्रीमान ब्रिजलाल जी. धन्यवाद सर. महोदय, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है जिसकी आबादी 25 करोड़ है और उसमें बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है. मैं प्रधानमंत्री जी को और मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो जन औषधि केंद्र बने हैं इससे गरीब लोगों को काफी फायदा हुआ. मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में इस समय कितने जन औषधि केंद्र हैं और भविष्य में उसको संख्या बढ़ाने की क्या योजना है? ऑनरेबल मिनिस्टर. सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हम फ्री ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ देते हैं एनएचएम के थ्रू, नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू. और फ्री ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक फैसिलिटी में जो जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ कि सब डिविजनल हॉस्पिटल में हम 106 मेडिसिन देते हैं, सब हेल्थ सेंटर में. और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हम 172 ड्रग्स देते हैं. कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हम 300 ड्रग्स देते हैं. सब डिविजनल हॉस्पिटल में हम 318 मेडिसिन फ्री ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक्स में देते हैं. और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में 381 देते हैं. तो इस तरीके से, और हम क्वालिटी एश्योरेंस भी करते हैं. तो इसलिए हम फ्री ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक फैसिलिटी के तहत हम कोशिश करते हैं कि आम गरीब आदमी को मुफ्त में जो एसेंशियल ड्रग्स है वो मिल सके, इसकी हम कोशिश करते हैं. जहां तक जन औषधि का सवाल है, जन औषधि के सवाल पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कुल मिलाकर के 18,646 जन औषधि केंद्र हैं एज ऑन 28 फरवरी 2026. और इसमें से 2,370 जो है वो ओपन हुए हैं हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, ये संख्या है. इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में 3,944 जन औषधि सेंटर्स हैं, ये मैं बताना चाहूँगा. यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये स्कीम शायद 2007-8 में शुरू हुई थी, लेकिन सिर्फ 2007 से 2014 तक 80 केंद्र थे और 2014 से लेकर के 2025 तक 18,646 जन औषधि केंद्र थे. सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान ब्रिजलाल जी. धन्यवाद महोदय. महोदय, इस समय देश में कुछ बीमारियां ऐसी बढ़ रही हैं जो पहले शहरों में होती थी, अब गांव में, जो लाइफ स्टाइल के कारण हो रही हैं. उसमें डायबिटीज,
कैंसर, किडनी डिजीज और ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर की वजह से तमाम लोगों को फालिज मारता है और उससे डेथ हो जाती है, अपंग हो जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि खासकर इन बीमारियों के लिए, कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, क्रिटिकल किडनी डिजीजेस, इनके लिए जन औषधि केंद्रों के माध्यम से क्या कोई विशेष व्यवस्था की जा रही है? ऑनरेबल मिनिस्टर। जैसा मैंने पहले बताया कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 80 से लेकर के बढ़ा करके 18,000 से ज़्यादा आज जन औषधि केंद्र बने हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी लंबी बड़ी छलांग लगाई गई है कॉमन मैन को व्यवस्था देने में। उसी तरीके से हम लोगों ने 2110 मेडिसिन, ये बास्केट ऑफ मेडिसिन जो है वो 2110 मेडिसिन जन औषधि केंद्र में मिलती हैं और 315 सर्जिकल मेडिकल कंज्यूमेबल्स डिवाइसेस मिलते हैं। ये हम लोगों ने किया है और इसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक, एंटी इन्फेक्टिव, एंटी एलर्जिक, गैस्ट्रो की बीमारियां और न्यूट्रोस्यूटिकल्स, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। और साथ ही साथ जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन हैं वो सारी की सारी इसमें इंक्लूडेड होती हैं। तो कोई भी प्राणलेवा बीमारी के लिए सारी व्यवस्थाएं जन औषधि केंद्र में हैं। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमती महुआ माझी जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। झारखंड के सरकारी अस्पतालों में आज भी आवश्यक दवाओं की भारी कमी बनी हुई है, जिससे गरीब और आदिवासी मरीजों को निजी अस्पतालों पर निर्भर होना पड़ता है। क्या केंद्र सरकार यह बताएगी कि दवा आपूर्ति की इस विफलता की जिम्मेदारी कौन लेगा? और झारखंड जैसे राज्यों के लिए, जहां दुर्गम पठारी जंगल वाले इलाकों में भी अनेकों गांव बसे हुए हैं, बड़े शहरों से अच्छी कनेक्टिविटी भी नहीं है, वहां के अस्पतालों के लिए अलग से दवा आपूर्ति सुनिश्चित करने की कोई ठोस योजना बनाई जा रही है? धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। मैं सदस्य महोदया को बताना चाहता हूं कि भारत सरकार की तरफ से बहुत ही ठोस नीति बनी हुई है और वो ठोस नीति में मैंने आपको स्पष्ट कहा कि ड्रग्स डायग्नोस्टिक फैसिलिटी में हम सब हेल्थ सेंटर को हम 106 मेडिसिन देते हैं सब हेल्थ सेंटर में और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हम 172 ड्रग्स देते हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हम 300 ड्रग्स देते हैं। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम 318 मेडिसिन देते हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम 381 मेडिसिन देते हैं। इसके साथ साथ हम टेक्निकल सपोर्ट भी देते हैं, डिजिटल सपोर्ट भी देते हैं, ताकि स्टेट की मशीनरी को पता हो कि किस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में किस सब डिविजनल हॉस्पिटल में कौन सी दवा समाप्त होने वाली है, कौन सी दवा को हमको सप्लाई करना है। और यहाँ तक कि हम यहाँ उनको ये भी सूचित करते हैं कि कौन सी दवा आपके यहाँ एक्सपायर होने वाली है। सो बेटर यू यूज इट और यू सेंड इट बैक। सो दैट ऑल्सो इंफॉर्मेशन वी गिव। तो शायद इससे ज्यादा कोई ठोस नीति भारत सरकार नहीं बना सकती है जो उनको गांव-गांव तक पहुंचाती है और बताती है कि ये चीज आपके पास अवेलेबल अब नहीं है और अवेलेबल आप करने के लिए आप इंडेंट भेजिए और ये आपके पास दवा एक्सपायर हो जाएगी, इसके पहले इस्तेमाल कीजिए या इसको वापस भेजिए। यहाँ तक की व्यवस्था है। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमती रंजीत रंजन जी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब से पूछना चाहती हूँ कि देश में 18,646 जन औषधि केंद्र है, लेकिन उसमें डॉक्टर्स कितने हैं? और जिसमें 2,370 जन औषधि केंद्र विशेष रूप से सरकारी अस्पतालों में खोले गए। मेरा प्रश्न है कि क्या प्लीज सरकार के पास ऐसा कोई डेटा है जिसमें यह पता चले कि कितने मरीजों ने जन औषधि पर विश्वास किया है? आप 1 साल का डेटा दे दीजिए और कितने मरीजों ने जन औषधि ली और उनका जन औषधि की दवाइयों से बीमारी का इलाज हुआ है। क्योंकि जानकारी के अनुसार, प्लीज जानकारी के अनुसार जन औषधि तो छोड़े, हमारी जो जेनरिक दवाई है ब्रांडेड दवाओं के कंपेयर में 50 से 80% सस्ती है। सर, ये एक्सपीरियंस है कि लोगों को अगर आप बोलिए कि जेनरिक दवाई लीजिए तो लोग कहते हैं नहीं नहीं, इससे तो हमारा बुखार भी नहीं उतरता है। तो लोगों को जेनरिक दवाई पे और जन औषधि पे विश्वास कैसे पैदा हो, इसके लिए सरकार क्या करे? If you are having any specific question, please come to that. जन औषधि पर
दवाइयों पे लोगों का विश्वास क्यों नहीं है, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? The House stands adjourned to meet at 2 p.m. Sir, you want to respond? Yeah, please. बहन जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आप प्रश्न में कंफ्यूज कर गए। ये हॉस्पिटल नहीं है, ये दवाई की दुकान है, आउटलेट है, और इसलिए यहाँ डॉक्टर नहीं होता, यहाँ डॉक्टर नहीं होता, यहाँ केमिस्ट होता है। आप पूछ रहे कितने डॉक्टर हैं और कितने लोगों का इलाज हुआ, तो जन औषधि केंद्र इलाज नहीं करता है, दवाई देता है और दवाई देने का काम करता है। जहां तक विश्वास का सवाल है, आज करोड़ों लोग जन औषधि केंद्र का उपयोग कर रहे हैं। The House stands adjourned to meet at 2 p.m.